Dear students, today we are going to read the lesson The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. The Rat Trap is a story that gives us a psychological insight into human nature. The author highlights how greed for material things entraps human beings. The story upholds the belief that the essential goodness of a human being can be awakened through love and understanding. It brings into focus the idea that the world is a rat trap. Riches, joys, shelter, and food are all lucrative baits to trap mankind. Rat trap स्टोरी ये मानवीय प्रकृति की एक साइकोलॉजिकल इंसाइट है। इसमें लेखक मटेरियल थिंग्स के प्रति जो लालच मानव को होती है और उसमें पढ़ करके वो फंस जाता है, उसके बारे में है। द स्टोरी अपहोल्ड्स द बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि मानव के अंदर जो अच्छाई है उसको जागृत किया जा सकता है प्यार से और समझ से। हम व्यक्ति को प्यार करके, उसको समझ करके उसके मानवीयता को जागृत कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स इन टू फोकस द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप। और इसमें जिस विचार को दिया गया है कि पूरी दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी की तरह से है। और दुनिया में जो रिचेज है, खुशियों के लिए, धन संपदा के लिए, शेल्टर के लिए और भोजन के लिए, ये जो चीजें हैं ये बेट्स की तरह काम करती हैं जिसमें मनुष्य फंस जाता है। The story is set in Sweden during the Industrial Revolution. During this time, many iron workers lost their jobs to machines and many other gained jobs working in factories. The main character of the story is one of these iron workers who lost his job to machines. He is now a traveling rat trap salesman, leading a pathetic life. One day he decides that life is a giant rat trap, and if one takes the bait, one is caught. That same night, he spends the night at an elderly man's house who gives him the shelter he needs. This is where the plot of the story actually begins. यहीं से कहानी की प्लॉटिंग शुरू स्टार्ट होती है। The rat trap peddler decides that it would be a good idea to steal the old man's money. At this point, he is forced to go into hiding and he gets lost doing it. When he is lost, he tries to stay the night at a metal working factory, where he meets the iron master, the owner, who mistakes him for his old friend. The man invites the rat trap peddler to his home for Christmas. The man finds out that he is not his old friend, but on the insistence of his daughter, lets him stay. At the end of the story, the peddler leaves a note stating that he made a mistake and got caught in his own rat trap. He thanks the daughter for giving him a second chance and helping him out. At this point, he returns the money. The story has philosophical merit. The first being the entire rat trap theory that states that life is one big rat trap. This often does seem to be the case. If you take something you went wrongfully, you will usually get trapped in life by your consequences. However, the tale also states that everyone should get another chance. The Rat Trap is a story that combines historical and philosophical views. About the author, Selma Lagerlöf was a Swedish writer born in the year 1858. She wrote stories that have been translated into many languages that all share the theme of understanding and love. Her stories present a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature, which she was awarded in 1909. Theme of the lesson. The Rat Trap is a short, almost fairy tale story
that centers around the transforming power of human kindness. The story also focuses on the balance of trust versus cynicism. The daughter, Edla, trusts the homeless peddler while her father accepts him to have robbed them, exemplifying a cynical view. The lesson also explores the basic human need for companionship and community. The rat trap theory of the world. The peddler stated that the whole world was a big rat trap. Its sole purpose was to lay down temptation for people in the form of riches and joys, shelter and food, heat and clothing, just as a rat trap offered cheese and pork. The moment a person was lured to reach out to it, the trap closed in on him, and then everything comes to an end. Not giving in to temptation is universal teaching of all religions, which the peddler absolutely believes in. The peddler derives pleasure in thinking this about other people as he has been living a deprived existence. Now the story. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है, एक व्यक्ति चूहेदानियां बेचा करता था इधर उधर घूम के. He made them himself. The moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वो स्वयं ही इन चूहेदानियों को बनाता था जो वो भिक्षा मांग करके या इधर उधर उसे पड़ा हुआ मिलता था बिग फार्म्स में, वहां से उठा करके इनसे चूहेदानी बनाता था. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. यद्यपि उसका ये व्यवसाय बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इसलिए उसे भिक्षावृत्ति भी करनी पड़ती थी और कभी कभी चोरी भी कर लेता था आत्मा और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इवन सो हिज क्लॉथ्स वेर इन रैग्स. यद्यपि उसके कपड़े चिथड़ों में थे, फटे पुराने. हिज चीक्स वेर सनकन. गाल धंसे हुए. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. और उसकी आंखों में भूख दिखती थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉर्न. कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कितना दुख भरा जीवन, उदासी भरा जीवन वो जी रहा था. एक घुमक्कड़ जीवन, यहाँ वहाँ घूमते हुए अपना जीवन बिता रहा था वेगाबॉर्न की तरह से. हु प्लॉट्स along the road, सड़कों पर घूमता था, left to his own meditations, और अपने ही विचारों में खोया रहता था. But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन इस व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार आया which really seemed to him entertaining, जो उसे बड़ा ही मनोरंजक लगा. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. और उस दिन जब अपने चूहेदारियों के बारे में वो सोच रहा था घूमता हुआ, उसके मस्तिष्क में विचार आया ये भी कि पूरी दुनिया जो है उसके पीछे पड़ी है. द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस. पूरी दुनिया, उसकी सारी भूमि, समुद्र, ये शहर, ये गांव, वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप. इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ये झील, झरने, पर्वत, पहाड़, दरिया, नदी, सागर, was nothing but a big rat trap. ये और कुछ नहीं सिवाय एक बड़ी चूहेदानी की तरह से थे. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. इसका और कोई उद्देश्य नहीं था सिवा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी लालच में फंसाने के लिए. बेट की तरह से था. It offered riches and joys. यहाँ पर धन संपदा, खुशियां, शेल्टर, मकान, कपड़ा, भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग, कपड़े और गर्मी प्राप्त करने के लिए. एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क. जिस तरह से रैट ट्रैप में लोग चीज और पोर्क लगा देते हैं, इससे चूहा फंस जाता है. एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड. और जैसे ही कोई मनुष्य इन सब दुनिया की चीजों में के चक्कर में फंसता है, उसके लालच में आता है और उसकी तरफ बढ़ता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम. और उसके जाल में वो फंस जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो फंस जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. दुनिया वास्तव में उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं रही. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इन दिस वे. तो इसलिए वो ऐसे बुरे विचारों को वो सोच रहा था. इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स. और ये ऐसी गंभीर चिंतन वो अक्सर
उसके मस्तिष्क में ये विचार आता रहता था, जब भी खाली समय में वो कुछ सोचता था ऐसे विचार आते, टू थिंक अ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और ऐसे लोगों के व्यक्तियों के बारे में सोचता था जो इस चक्कर में फंस गए थे। एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और ऐसे भी कुछ व्यक्तियों को जानता था या देखता था जो अभी इस बेट के चक्कर में फंस रहे थे, इसके चारों ओर घूम रहे थे और फंसने ही वाले थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक अंधेरी शाम को जब वो ऐसे ही चूहेदानियां बेचता हुआ जा रहा था, गुजर रहा था, उसकी नजर सड़क के किनारे एक कुटिया पे पड़ी, एक कॉटेज पे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने दरवाजा खटखटाया जिससे रात में उसे शरण मिल सके। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, बजाय के बुरा सा मुंह बनाया जैसे कि वो अक्सर मिलता रहता था, लोग बुरा मुंह बनाते थे जब भी कुछ मांगता था। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, वो मकान का मालिक जो था एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके बच्चे नहीं थे, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कोई उसके एकांत में बात करने के लिए तो मिला। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पुट ऑन द पॉट ऑन द फायर, और उसने फिर उसके लिए आग जलाई, उस पर खाना बर्तन चढ़ाया। एंड गेव हिम सपर, और खाना पका के उसे खाना खिलाया। देन ही कार्व्ड अप सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने टोबैको भी दी और उसको धूम्रपान कराया। इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, उसके लिए और उस अजनबी के लिए पर्याप्त थी। उसने उसके धूम्रपान भी कराया खाने के बाद। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में एक पुरानी सी कार्ड ताश के पत्तों को निकाला, एंड प्लेड जुलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और सोने के पहले तक वो खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत उदार था, उदार हृदय व्यक्ति था, जितना ही उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको, जैसे उसने उसे खाना खिलाया, टोबैको दी, वैसे ही उदार हृदय का व्यक्ति था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रैम्सो आयरन वर्क्स, और अजनबी को उसने बताया कि कभी वो रैमजेसो मिल में काम करता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहां पर काम किया था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, यद्यपि अब वो बूढ़ा हो चुका था और काम करने के योग्य नहीं रह गया था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब उसके पास उसकी गाय थी जो उसकी सहारा थी, उसी से उसकी दिनचर्या और रोजी रोटी चलती थी। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हाँ वो मेरी गाय बहुत अति साधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, प्रतिदिन दूध देती है, से क्रीम निकालता हूँ। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर्स इन पेमेंट, और पिछले महीने ही उसे 30 क्रोनोर बदले में मिला है उसके दूध दही और क्रीम को बेच के। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अजनबी सब देख रहा था, सुन रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट अप टू द विंडो, वो बूढ़ा आदमी उठा, खिड़की तक गया। टुक डाउन ए पैच विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, उस खिड़की के साथ ही एक कील से एक पैच टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, और उसमें से उसने 3 पुराने 10 क्रोनोर बिल्स नोट के निकाले और उसे दिखाए। These he held up before the eyes of his guest, उसने अपने मेहमान के सामने, उसकी आंखों के सामने नोट निकाल के दिखाया, देखो मैंने ये 30 क्रोनोर्स कमाए। नॉडिंग knowingly and then stuffed them back into the pouch, और फिर उसको उसने पाउच में फिर से रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दूसरे दिन अगले दिन दोनों अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को बहुत जल्दी थी अपने गाय को दूध निकालने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन, और दूसरा व्यक्ति जो ये पेडलर था, अब उसने सोचा कि जब मालिक ही उठ गया है तो उसे अब बेड पे नहीं लेटे रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों घर से एक ही समय पे निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, बूढ़े क्रॉफ्टर ने घर के दरवाजे को बंद किया और चाबी को अपनी पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, वो व्यक्ति जो चूहेदानियां बेचता था उसने उसको गुड बाय कहा, धन्यवाद कहा कि
कि आपने मेरे अतिथि मुझे के रूप में मेरा पूरा सत्कार किया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद ही ये चूहे दानी बेचने वाला पेडलर जो है वेगाबॉन्ड फिर से उस कुटिया के दरवाजे के सामने खड़ा था। He did not try to get in, उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window, वह खिड़की के पास गया, smashed the pane, खिड़की का शीशा तोड़ा, stuck in his hand, अपना हाथ डाला अंदर, and got hold of the pouch with the 30 kronor, और उस पाउच को उतार लिया जिसमें 30 kronor थे। He took the money and thrust it into his own pocket, उसने पैसे निकाले और अपने जेब में डाल लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place, फिर उसने लेदर के पाउच को बड़ी सावधानी से उस कील से टांग दिया and went away, और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness, और जैसे उसने पैसे निकाल के अपने पॉकेट में रख लिए, वो अपनी स्मार्टनेस पे बहुत खुश हुआ कि वो तो बहुत चालाक है। इस बूढ़े के यहाँ रहा, रात भर इस बूढ़े ने उसकी सेवा सत्कार की, उसको खाना खिलाया, उसको ठहराया, उसके संग ताश खेले, उसके संग अच्छी बातें की, लेकिन उसे अपने वो स्मार्ट लगा कि वो बहुत स्मार्ट है, उसका पैसा उसने ले लिया। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, पहले तो हो गया, फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आम रास्ते से चले, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसके दिमाग में विचार आया कि उसे मुख्य सड़क से पगडंडी वाला रास्ता, जंगल वाला रास्ता पकड़ना चाहिए, इनटू द वुड्स, जंगल की तरफ। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले घंटे में दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, कोई परेशानी नहीं हुई, उस रास्ते पे चलता गया। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में दिन समय बहुत कठिनाई आने लगी। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो बहुत बड़ा धोखा देने वाला जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में वो प्रवेश कर चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने बहुत कोशिश की वो एक निश्चित दिशा में चले, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, लेकिन जो रास्ते थे जंगल में यहाँ वहाँ मुड़े थे, वो घूम करके फिर वहीं आ जाते। एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, इतने अजीब रूप से मुड़े थे कि वो उसी में घूमता रह गया। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता गया, जंगल का अंत ही नहीं आ रहा था। एंड फाइनली he realized that he had only been walking around the same part of the forest, और अंत में उसे एहसास हुआ कि अरे वो तो जंगल के उसी हिस्से में घूमता रहा था इतने समय तक। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap, और तुरंत उसके दिमाग में ये विचार आया दुनिया का कि दुनिया भी एक चूहेदानी की तरह से है, और वो भी शायद जाल में फंस चुका था। Now his own turn had come, अब उसकी बारी आ चुकी थी। He had let himself be fooled by a bait, वो एक चारे के गिरफ्त में आ चुका था और फंस चुका था। एंड हैड बीन कॉट। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स, पूरा जंगल, उसकी शाखाएं, पेड़ों की टहनियां, जड़ें, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, और जो गिरे हुए लट्ठे थे, पेड़ गिरे हुए थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, सब उसका रास्ता रोक रहे थे। लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, एक ऐसी जेल की तरह से जिसमें से वो कभी निकल नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर के बाद का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा घिर रहा था जंगल में। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, इससे खतरा भी बढ़ रहा था, रात हो रही थी, और इससे निराशा और उसे घेर रही थी कि वो तो फंस चुका था। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंत में उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर पड़ा, टायर्ड टू डेथ, एकदम मृत्यु के करीब था, थक चुका था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो सोच रहा था जैसे उसका अंतिम समय आ गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर अपने सर को रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, बड़े जोर की थम्पिंग हो रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और उसमें कोई संदेह नहीं था कि आवाज कहाँ से आ रही थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसे उम्मीद जगी, वो अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये तो किसी आयरन मिल से हथौड़े के चलने की आवाज आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, इसका मतलब है कि वहां पे लोग भी होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति उठाई, गॉट अप, उठा, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज की दिशा में लड़खड़ाते हुए चलने लगा। The ruins of ironworks which are now closed down were not so long ago a large plant. रमेश, जो आयरन वर्क जो था, जो अब बंद हो चुकी थी,
बहुत पहले वो बहुत बड़ा प्लांट था, विद स्मेल्टर रोलिंग इन द समर टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ heavily लोडेड barges एंड scows slid डाउन द कैनल। और बहुत बड़ा प्लांट था, तो वहाँ पेड़ों के लट्ठे वहाँ पर नहर के किनारे स्लिड करते थे, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो एक लेक की तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वेर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच शिफ्टेड डाउन। और जाड़े के शीत ऋतु में सड़क जो थी वो पूरी काली पड़ जाती थी कोयले की डस्ट से, जो कि बड़े चारकोल क्रेट से आती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, और जस्ट बिफोर क्रिसमस की वो रात थी, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। आयरन मास्टर स्मिथ और उसका सहायक दोनों ही उस अंधेरे उस फोर्ज में आग अंगीठी के सामने बैठे हुए, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जो आयरन को आग में तपाया जाता उसकी कटिंग होती, उसका वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसे आग में पहले रखा जाता था, फिर उसे एनविल पे रखते, एनविल जिस पर सरिये को रख करके काटा जाता है। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration through, as was the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. बार बार ऐसी प्रक्रिया चलती, आग में से निकाल के उसको फिर एनविल पे रखते और कटिंग करते। और उन्होंने कोई ऐसा विशेष ड्रेस भी नहीं पहन रखा था। ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट और एक पेयर ऑफ वुडन शूज, जो उनके जूते थे वो लकड़ी के बने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वेर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और रह रह के आवाज़ वहीं से आ रही थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, हथौड़े की आवाज़ और कोयले की चटकने की आवाज़। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter, और जो सहायक था क्लैटर से कोयले को लेकर के उस आग में डालता। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर झरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो दहाड़ रहा था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन, और नॉर्थ विंड बह रही थी अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और बारिश हो रही थी, और जो ब्रिक की टाइल थी छत की, उस पर वो बारिश की बूंदें गिर के आवाज कर रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपनड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ट। और शायद यही बार इतनी शोरगुल की आवाज़ थी जिसके कारण मास्टर स्मिथ को ये नहीं पता चला कि कोई गेट खोला और कब फोर्ज के अंदर आ गया था। अंटिल स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो अंगीठी के सामने आके नहीं खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty। और निश्चित रूप से इस घुमक्कड़ वेगाबॉन्ड के लिए तो ये अनयूजुअली ऐसा नहीं था, क्योंकि अक्सर उसके साथ ऐसे होता रहता था। उसका कोई अपना घर तो था नहीं, यहाँ वहाँ भटकता रहता था, और रात बिताने के लिए इससे अच्छी शरण लेने की जगह क्या हो सकती थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और यहाँ करके आग के सामने अपने आप को गर्म करने का। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली, जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार था उसने ऐसे आमतौर पर कैजुअली ढंग से उसकी तरफ देखा। एट द इंट्रूडर, उस घुसपैठिए को। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो ऐसा ही दिखाई सकता दे रहा था जैसा कि उस तरह के व्यक्ति दिखाई देते हैं। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी रैग, फटे पुराने कपड़े, एंड विथ ए बंच ऑफ रैट रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और वो चूहेदानियाँ लटका रखा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने उससे रुकने की आज्ञा मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड ए हाफ्टी कंसेंट, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने स्वीकार के मुद्रा में अपने सर को हिला दिया। विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और ट्रैम्प ने भी, पेडलर ने भी कोई भी शब्द नहीं कहा। He had not come there to talk, वो वहाँ कोई बात करने थोड़े ना आया था, but only to warm himself and sleep, केवल अपने को गर्म रखने और सोने के लिए आया था। In those days, the Remesso iron mill was owned by a very prominent iron master। उन दिनों जो रेमेसो मिल थी एक बहुत ही अच्छे आयरन मास्टर थे, उनके अधीन थी। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, इनकी इच्छा थी कि बाजार में अच्छे आयरन को वो ले आए।
सेल करें। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी द वर्क वाज डन एज वेल, और रात दिन वो देखा करते थे कि उनके मिल में जो काम हो अच्छा हो, एज वेल एज पॉसिबल, जितने संभवतः अच्छा हो सकता था उतना अच्छा हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ द नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और उस दिन भी मालिक जो है वो इंस्पेक्शन के लिए आमतौर पर वो आते रहते थे, उस रात को भी वो आ गए। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. और स्वाभाविक रूप से जो सबसे पहली चीज उसने देखी कि ये जो अजनबी पेडलर रैगमाफिन था वो इतना आग के करीब लेटा हुआ था कि उसके कपड़ों से स्टीम निकल रही थी, वाष्प निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ की तरह से ही उसके संग पेश नहीं आया, जैसे ब्लैक स्मिथ ने कुछ नहीं पूछा। हु हैड हार्डली नीड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने उसकी तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की थी। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, मालिक जो है उसके करीब गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक उसको देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और फिर उसके हैट को उसने हटाया जिससे उसके चेहरे को देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलाफ, ही सेड। उसने कहा, अरे नील्स ओलाफ तुम हो, हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखाई देते हो, तुम इस दशा में, तुम्हारी ये हालत हो गई। The man with the rat trap had never before seen the iron master at Ramesh Joe and did not even know what his name was. और ये इंट्रूडर पेडलर जो था, इसने कभी भी आयरन मास्टर को देखा ही नहीं था, नहीं उसका नाम जानता था। बट दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन उसे लगा कि अगर ये सज्जन व्यक्ति उसे कोई पुराना परिचित समझ रहे हैं, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, हो सकता है कि यहाँ भी कुछ उसे रुपए में पैसे मिल जाए। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए तुरंत उसने उनकी बात को झुठलाया नहीं। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said, बल्कि उसने कहा कि हाँ, ईश्वर ही जानता है कि मेरे साथ क्या बीती है। You should not have resigned from the regiment, मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हें अपनी नौकरी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, अगर मैं उस समय रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, हाँ चलो ठीक है, तुम मिल गए, तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उस आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने और उसको अपना पुराना दोस्त समझ के उसकी तरह से व्यवहार करने का पेडलर ने सोचा। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, लेकिन फिर भी ट्रैम्प को अच्छा नहीं लगा। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, चौकन्ना होते हुए, तुरंत चौकन्ना हो गया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, और उसे फिर तुरंत 30 क्रोनोर की याद आई जो उस बूढ़े व्यक्ति से वो चुरा के लाया था। टू गो अप to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, और अब इस आयरन मास्टर के साथ उनके घर जाना तो ऐसे ही होगा जैसे शेर के गुफा में प्रवेश कर जाना। He only wanted a chance to sleep here in the forge, वो तो केवल यहाँ फोर्ज में रात बिताना चाहता था। And then sneak away as inconspicuously as possible, और वैसे ही सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing, आयरन मास्टर ने समझा कि शायद ये अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से लज्जित शर्मसार समझ रहा है अपने आप को। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड, उसने कहा कि अरे तुम शर्मसार मत हो, मत समझो कि मैं तुम्हें अपने घर लिवा जा रहा हूं तो मेरे घर में तुम रह नहीं सकते। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ तो रही नहीं, एलिजाबेथ उसकी वाइफ है आयरन मास्टर की। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने सुना ही होगा, माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे लड़के जो है वो विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर पे कोई नहीं है सिवा मेरी बेटी के, एंड माई सेल्फ, और मेरे। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर द क्रिसमस, और हम लोग बड़ा ही दुखी हो रहे थे कि इस बार क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं है। नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक ए क्रिसमस फूड डिसअपीयर लिटिल फास्टर,
चलो अब तुम मिल गए हो, घर चलो और क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे मिलजुल के। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो अगेन नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने नो कहा कि नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने उसको ये समझा कि नहीं जाना चाहता है, तो वो हार मान गया। इट लुक्स एज दो कैप्टन यू स्टिल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट स्टर्जन स्टॉर्म, और आयरन मास्टर ने वहाँ ब्लैक स्मिथ से कहा कि शायद ये आज की रात तुम्हारे साथ ही बिताना चाहते हैं। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील, और वापस मुड़ गए। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जब वो चले गए तो वो अपने आप में हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड दैट हिज लास्ट वर्ड। लेकिन ब्लैक स्मिथ जो अपने मालिक को जानता था, वो समझ गया कि अभी ये गए हैं, लेकिन ये इसको ऐसे यहाँ छोड़ेंगे नहीं अगर ये इसका फ्रेंड है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ट, और अभी आधा घंटा भी नहीं बीता हुआ था कि गाड़ी वहाँ पे आई। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान आए। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार आयरन मास्टर खुद नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। उन्होंने इस बार अपनी बेटी को भेजा था ये समझ करके कि उसे समझाने की असीम क्षमता उसके अंदर है, शायद वो उसको मना करके ले आए। सी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, वो प्रवेश की, घोड़ा गाड़ी का चालक भी एक बड़ा सा फर का बना हुआ कोट लेकर के हाथों में वहां आया। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन बहुत ही सभ्य और थोड़ी शर्मीली भी दिखाई दे रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, मास्टर ब्लैक स्मिथ वो लुहार और उसका सहायक दोनों बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इनटू द फर्नेस, और अभी कोयला और अंगीठी आग वैसे ही जल रही थी। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और वो अजनबी वैसे ही लेटा हुआ था फर्श पर, और एक लोहे का टुकड़ा अपने सर पे रख करके लेटा हुआ था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और अपनी आंखों को उसने अपने कैप से ढक रखा था। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस लड़की की नजर उस पर पड़ी, she went up and lifted his hat, वो उसके पास गई और उसके कैप को उसने हटाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, वो व्यक्ति सो रहा था अपनी एक आंख खोले हुए। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened, वो उछल पड़ा और डर गया। My name is Edla Bill Manson, उसने कहा देखो मेरा नाम एडला बिल मैनसन है। said the young girl, उस युवा लड़की ने कहा। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, मेरे पिताजी घर आए, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ फौज में रात गुजारना चाहते हो। And then I asked permission to come and bring you home to us, और फिर मैं उनकी आज्ञा से तुम्हें घर लिवा जाने के लिए आई हूँ। I am so sorry कैप्टन, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कितनी मुश्किल भरा समय से आप होकर के गुजरे हैं। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने बड़ी दयापूर्ण ढंग से उसकी तरफ देखा कि आज इसकी ये हालत हो गई है। जो कभी मिलिट्री में काम करते थे उसके पिताजी के साथ, विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और फिर उसने ध्यान दिया कि वो आदमी भयभीत हो गया था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था जैसे कि वो कोई चीज चुराई हो या कहीं जेल से भाग के आया हो। सी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसके मन में विचार आए और उसने शीघ्रता से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, आप निश्चिंत होकर चलिए घर पे कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जैसे अपनी इच्छा से आप चलेंगे वैसे ही अपनी इच्छा से जा सकते हैं, जब जाना चाहें आप चले जाइएगा। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल क्रिसमस पर हमारे साथ आप रहें। She said this in such a friendly manner that the rat upholder must have felt confidence in her, और इतनी मित्रतापूर्ण व्यवहार ढंग से उसने कहा एडला बिल मैनसन ने उससे कि उस पर उसका विश्वास हो गया। It would never have been bother with me yourself miss, he said, I will come at once, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं आपके साथ तुरंत चलूंगा। He accepted the fur coat, उसने फर कोट को भी स्वीकार कर लिया, which the valet handed him with a deep bow, जिसे उस चालक ने बहुत झुक करके उसको फर कोट पकड़ाई। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, जिसे उसने अपने पुराने कपड़ों के ऊपर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और पीछे पीछे कैरिज तक गया।
without granting the astonished blacksmith so much as a glance. और बिना उस लोहार की तरफ और उस सहायक की तरफ देखे हुए, जो कि बड़े ही अचंभित ढंग से देख रहे थे. बट while he was riding up to the manor house he had evil forbidden. लेकिन जब वो घोड़ा गाड़ी पर चढ़ करके जा रहा था, उसके मन में फिर बुरे विचार आए. Why the devil did I take that fellow's money? मैंने क्यों उस बूढ़े व्यक्ति का पैसा चुराया? He thought, उसने सोचा. Now I am sitting in the trap, और अब मैं तो जाल में फंस गया हूँ. And will never get out of it, और मैं इसमें कभी नहीं निकलूंगा. The next day was Christmas Eve, अगले दिन क्रिसमस थी. And when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी. एंड व्हेन द आयरन मास्टर जब आए अंदर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए, उन्होंने संभवतः सोचा संतुष्टि के साथ कि उसका पुराना रेजिमेंटल दोस्त जो है वो रात में जो आए थे और जिसके संग बड़ा ही दुखी घटनाएं घटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स. पहले हम देखेंगे कि थोड़ा अच्छा खा पी करके ठीक से हो जाए. ही सेड टू हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल लगाने में व्यस्त थी. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स. और फिर इसके लिए देखेंगे कि ये कोई काम मिल जाए, ये चूहेदानियां न बेच करके कोई काम करे. इट इज क्वीट दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम. बहुत बुरा हुआ, बड़ी अजीब बात है जो इसके संग बुरा हुआ और इतने बुरे दिनों से होकर गुजरा. सेड द डॉटर, मेरी बेटी ने कहा कि हाँ बहुत बुरा हुआ. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. पिछली रात को मैंने नहीं सोचा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो इतने शिक्षित व्यक्ति हैं. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम धैर्य रखो बेटी. सेड द फादर, पिता ने कहा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, और जैसे ही वो साफ सुथरा होकर स्नान ध्यान करके और कपड़े पहन के आया, यू विल सी समथिंग डिफरेंट. तो तुम्हें वो अलग दिखाई देगा. तुम्हें रात में और इस हालत में तुम्हें ऐसा लग रहा था. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात को बहुत ही हतोत्साहित था वो. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द रेड ट्रैम्प क्लॉथ्स, और ये जो घुमक्कड़ी जीवन जी रहा था उसका जो असर था वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जैसे ही उसने ये बात कही उसी समय दरवाजा खुला और अजनबी अंदर प्रवेश किया. यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. हाँ, अब वो एकदम साफ सुथरा कपड़े पहन चुका था. द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, और वो नहा चुका था. कट हिज हेयर, उसके बाल कटवा दिए थे. एंड सेव्ड हिम, उसने सेविंग भी कर ली थी. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के थे. ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज. वाइट कॉलर की शर्ट, वाइट कलर की शर्ट और सफेद और शूज पहन रखे थे. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, जबकि वो बहुत अच्छा ढंग से कपड़े वपड़े पहन करके. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, आयरन मास्टर उसे देख करके प्रसन्न नहीं हुआ. ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, भवें चढ़ा करके उसकी तरफ देखा, क्योंकि ये वह व्यक्ति तो वो नहीं था, ये तो कोई दूसरा ही था. एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, और तुरंत समझ गया कि उस समय जहाँ फोर्ज में अंगीठी की रोशनी में जब उस जो परछाई पड़ रही थी उसकी रोशनी में उसने देखा था और वो गलती कर बैठा था. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, जब वो दिन के उजाले में उसके सामने खड़ा था, वो तुरंत पहचान गया. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ये तो असंभव ही था कि वो अपने पुराने सहपाठ कर्मी को न पहचाने. What does this mean? इसका क्या मतलब था? He thundered. वो कांप गया. अरे व्यक्ति धोखा दिया, झूठ बोला. The stranger made no attempt to dissimulate. Stranger ने, अजनबी ने कोई भी प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा. He saw at once that the splendor had come to an end. और तुरंत उसने देखा कि सारी जो आराम और भव्यता को सोच करके वो यहाँ आया था वो सब समाप्त हो चुका था. It is not my fault sir, he said. उसने कहा ये मेरी गलती नहीं थी श्रीमान. I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कोई ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की, मैं तो एक गरीब चूहेदानी बेचने वाला ट्रेडर हूँ. एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज, और मैंने निवेदन किया था
कि मुझे यहीं फौज में रहने दिया जाए, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, और सबसे बुरा ये होगा कि मैं फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लूंगा और यहाँ से दूर चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा ठीक है, हेजिटेटिंग ए लिटिल, बिना थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, ठीक बात नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. उसने कहा, This whole world is nothing but a big rat trap. ये पूरी दुनिया सिवाय एक चूहेदानी के कुछ नहीं है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese. जो भी अच्छी चीजें आपको मिलती हैं वो सिवा चीज के, rinch and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. एक गरीब असहाय बेचारे को मुसीबत में डालने के लिए मैं इस भेंट में फंस गया। ये पूरी दुनिया जो है एक चूहेदानी है और इसके जाल में लोग फंस जाते हैं। इफ द शेरिफ comes now and looks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork. और मिस्टर आयरन मास्टर, ये ध्यान रखिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप खुद एक बड़े पीस को प्राप्त करने के लिए आप उसके जाल में फंसेंगे, देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी जाल में फंस जाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, मेरे अच्छे मित्र, इतनी बुरे ढंग से बात नहीं कही गई थी। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। चलिए ठीक है, जितनी जल्दी से तुम यहाँ से जा सकते हो जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, लेकिन जैसे ही व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था बेटी ने कहा, आई थिंक ही ऑफ टू स्टे विथ अस टुडे। मैं सोचती हूँ कि इसे आज यहाँ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, वेंट एंड क्लोज द डोर, मैं नहीं चाहती कि यहाँ से आज जाए आज क्रिसमस के दिन, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, पिता ने कहा तुम किस दुनिया में रह रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एंड एम्बैरेस्ड, बेटी वहां खड़ी थी शांत तो उत्साहित हुए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। और उस सुबह वो सोच रही थी, इतनी प्रसन्न थी कि क्रिसमस के दिन कोई उसके घर मेहमान आया था और उसके लिए वो तरह तरह के पकवान पका करके उस भूखे को खिलाना चाहती थी। कोई उसके यहाँ मेहमान था। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। और वो अपने मन से ये विचार को तुरंत नहीं हटा पाई। उसके दिमाग में ये था कि उस कोई आया है उसके यहाँ, उसकी खातिरदारी करेगी। तो एकाएक इस बदले हुए विचार को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, उसी बार लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पूरे साल वो यहाँ वहाँ घूमता रहा है, चलता रहा है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, और इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर इसका स्वागत किया गया हो और जहाँ पर ये घर जैसा महसूस करे। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, जहाँ कहीं भी ये जाता है इसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा ये पकड़े जाने के भय से ग्रसित रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और इससे तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आई शुड लाइक टू हैव हिज इंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर, मैं चाहती हूँ कि आज वो हमारे यहाँ क्रिसमस के दिन वो एक दिन शांति का गुजारे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में एक दिन तो कम से कम शांति का गुजारे। द आयरन मास्टर mumbled something in his beard. आयरन मास्टर जो कुछ सोचे, he could not bring himself to oppose her, और वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सके। It was all a mistake of course, ये सब एक गलती थी। She continued, उसने कहना जारी रखा। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. और हमें लगता है कि हमें उस व्यक्ति को जिसे हम खुद ही यहाँ लाए अपने घर पे, उसे चले जाने के लिए आज इस त्यौहार वाले दिन कहें। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसे हमने प्रॉमिस किया है क्रिसमस बिताने का। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, सेड द आयरन मास्टर, तुम तो एक पादरी की तरह से उपदेश दे रही हो। आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं केवल यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें पछतावा
हो इस बात का, तुम्हें पछताना न पड़े बाद में। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल। वह लड़की ने स्ट्रेंजर को अपने हाथों से पकड़ा और उसे खाने की मेज पे ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाना खाओ, सी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। उसने देखा कि पिताजी भी एक्सेप्ट कर चुके थे कि वो रहे। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। वो बैठ गया और खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। और रह रह के वो उस युवा लड़की को भी देख लेता था जिसने उसका बचाव किया था और उसको रुकने के लिए अवसर दिया था। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या विचार हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रमेश जो पास जस्ट एट इट ऑलवेज हैड द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। और ये अजनबी भी खाना खाया रहा और उसने सिवा सोने के और कुछ नहीं किया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम। पूरे दोपहर तक बाद तक जो है वो सोफा पे लेटा रहा गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक ही करवट लेटा रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। और दोपहर बाद उसे उठाए कि उठ करके थोड़ा खाना खाए क्रिसमस। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, खाना खाने के बाद फिर वो सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली। ऐसा लग रहा था कि पूरे वर्ष वो शायद इतनी शांतिपूर्ण ढंग से सोया भी नहीं था। एंड सेफली एज हियर एज रमेश जो, और उतना ही सुरक्षित था और वो सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, और शाम को जब क्रिसमस ट्री को प्रकाशित किया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उसे फिर से जगाया गया। एंड स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में कुछ क्षण के लिए खड़ा रहा। ब्लिंकिंग नेस दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और नजरें को अपने एडजस्ट कर रहा था, उस कैंडल लाइट जो जल रही थी उससे उसे तकलीफ हो रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और उसके बाद फिर वो गायब हो गई। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे के बाद फिर से उसे जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन विद द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश, और फिर वो डाइनिंग रूम में गया, क्रिसमस फिश खाई एंड पॉरिज खाई। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, और वहाँ से उठे और उसे फिर प्रेजेंट दिया गया। एंड सेड थैंक यू, और थैंक यू कहा, एंड गुड नाइट कहा गया। बट वेन he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. और जब वो आया, लड़की ने कहा कि ये जो सूट पहन रखा है हमारे पिताजी का ही इच्छा है कि वो उसे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में रख ले। He did not have to return it, उसे लौटाना नहीं था। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस, और वो अगली क्रिसमस भी यहाँ जगाना अपना मनाना चाहता है, वेर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वो शांति से सो सके, बैठ सके, आराम कर सके। एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, तो कुछ भी बुरा नहीं वो आ सकता है। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड टेस्ट डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, चूहेदानी बेचने वाले रेड ट्रैप ने कुछ भी नहीं कहा। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो केवल उस लड़की को बहुत ही आश्चर्यचकित ढंग से देख रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों उठे अच्छे मूड में कि क्रिसमस के लिए जाने के लिए। देयर गेस्ट वाज स्टिल स्लीप, उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उसे उन्होंने जगाया नहीं। When at about 10 o'clock they drove back from the church, और जब 10 बजे दोनों चर्च से लौटे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. बेटी जो है पहले से भी निराशाजनक ढंग से, जैसा कि आमतौर पे होता था, और निराश होकर के वो बैठी थी। At church she had learned that one of the old crafters of their ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps, क्योंकि चर्च में उसे पता चला कि एक उसके यहाँ काम करने वाले क्राफ्टर को रॉब कर लिया गया था, लूट लिया गया था एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो चूहेदानियां बेचता है। और उसे तुरंत पता चल गया था कि ये तो वही व्यक्ति है, और वो बहुत हताश हो गई थी। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर। हाँ तुम तो कह रही थी बहुत अच्छा व्यक्ति है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट, और मुझे अब लग रहा है कहीं मेरे घर में कुछ बचा है कि नहीं बचा है। द वैगन had already stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger, और रुकते ही गाड़ी आयरन मास्टर ने कहा
चालक से कि देखो वो अजनबी है कि नहीं। He added that he had heard at church that the man was a thief. और उन्होंने ये भी बताया कि हमने सुना चर्च में कि वो व्यक्ति एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. और उस चालक ने बताया कि वो व्यक्ति जा चुका था लेकिन वो अपने साथ कुछ ले नहीं गया था। On the contrary, और इसके विपरीत, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. और इसके विपरीत वो कुछ प्रेजेंट के रूप में वहाँ एक पैकेट छोड़ गया था मिस विलमेंसन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। द यंग गर्ल ओपन द पैकेट, एडला विलमेंसन ने उस पैकेट को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। उसने बुरे ढंग से पैकेजिंग की गई थी कि तुरंत उसमें जो वस्तु रखी गई थी वो दिख गई। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसे खुशी से चीख निकल पड़ी। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, उसमें एक छोटा सा चूहेदानी थी। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 करोड़ नोट्स, और उसके अंदर वो 3 10 करोड़ नोट्स के नोट थे जिसे उस बुजुर्ग के यहाँ से वो चोरी करके लाया था। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स, और उस चूहेदानी में एक पत्र भी पड़ा हुआ था, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, आप इतनी अच्छी रही हैं मेरे प्रति, उदार रही हैं, ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ, आप उतनी उदार मेरे प्रति रहीं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं भी बदले में आपके प्रति बहुत अच्छा होना, उदार होना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे मैं वास्तव में रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, और मैं इस क्रिसमस के मौके पर एक चोर के द्वारा आपको उत्साहित और परेशान नहीं करना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप ये पैसे, जो सड़क के किनारे वो बूढ़ा व्यक्ति है, उसको ये पैसे लौटा दीजिएगा। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वेंडरर्स, जहाँ पर उस खिड़की, उसके घर की खिड़की के साथ ही एक कील पर एक पाउच में ये नोट पर एक बेट की तरह से, एक चारा की तरह से लटके हुए थे, जिसके जाल में मैं फंस गया था और मैंने चुरा लिया। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और ये चूहेदानी जो है एक चूहे की तरफ से आपको क्रिसमस का उपहार है। वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, जो इस दुनिया के चूहेदानी, दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस चुका था। इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर उसे कैप्टन समझ के नहीं उठाया गया होता तो वो चोर ही रहता, ऐसे ही वेंडर रहता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और इस प्रकार से वो अपने आप को साफ नहीं कर पाता, वैसे ही चोरी करता, घुमक कर रहता। लेकिन जो उसे, उसके संग उसने इतना उदार व्यवहार किया, उसको सम्मान दिया, उसको खाना दिया, उसकी वजह से उसके अंदर ये बदलाव आया। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, मित्रतापूर्ण भाव के साथ ये पत्र लिखा गया। एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन बॉर्नस्टेल, कैप्टन बॉर्नस्टेल। नाउ द चैप्टर हैज एंडेड। Thank you very much for the presentation. Thank you very much.